Good morning, all of you. And here is the ultimate finisher for your JEE Mains April session. And I think this paper finds you in good academic health, and this will be of very crucial academic help to you because in this paper, without touching the pen, I'll show you how someone could have got 99 percentile if really he's little bit smart. Okay, of course, disclaimer is there is nothing called तुक्का strategy. और तुक्का से कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। वो सब बकवास है जो ऑप्शन 2 को टिक कर दो, ऑप्शन 3 को टिक कर दो, गैप बिटवीन ऑप्शन आर देयर, तो आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट बकवास। लेकिन कॉन्सेप्चुअली we can be very smart. So what I'll be doing is we'll do conceptual murder of the question. Okay, because if you'll apply तुक्का आप खुद murdered हो जाइएगा। तो अब देखो conceptually how we can kill the problems. Of course not all problems can be done by this, but this primarily focus on the weakness of the question setters, and moreover that will always happen in every examination क्योंकि question के options को थोड़ा attractive बनाना है. So the moment they'll try to make problems attractive and the solutions attractive, there will be some like cons of the problems. So let's see without any further discussions, and please do like, subscribe and share this channel as much as possible. Take go and like solve the problems. It's better first we'll scan through the entire paper and read this as medium difficult. Now what is medium and difficult? That's again a matter of like relative ideas depending on students to students. So I'll always tell you try to tick those questions which are easier or medium, in which you are comfortable with, like the conceptually you are good at some particular topic, or even from NCERT level का अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है फील्ड से जो आ रहा है तो उसको वी कैन टेक आउट एज मीडियम प्रॉब्लम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम कंपोजिट फंक्शन क्या, अब ये डेफिनेटली वी कैन सॉल्व, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा तो इसको सेकंड राउंड के लिए रखते हैं। We went to the second problem, median and mean is there. Of course this will be the easiest problem because mean deviation is just deviation about center of mass, and median like the guy which is exactly in middle. तो ये तो बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी आई डू इट इन द लास्ट। क्यों? क्योंकि थोड़ा कैलकुलेशन होगा। थर्ड क्वेश्चन वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दिखा, ठीक है, मीन्स ये करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन दिख रहा है, अच्छा कंटिन्यूटी, इट मीन्स एट एक्स इक्वल टू 0 1 ये सब का वैल्यू मैच करना होगा कंटिन्यूटी के लिए, डिफरेंशिएबल, सो डेफिनेटली इज बेटर यू कैन डू। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज अ वेल एक्सटेंडेड प्रॉब्लम, तो ये तो पक्का यू हैव टू डू इन द फर्स्ट को, राइट। एलिप्स इसेंट्रिसिटी के अलावा सिलेबस में नहीं है, तो ये तो पक्का आपको करना ही है, इवन इफ यू वांट टू गेट इवन 90 परसेंटाइल, ठीक है। एरिया इनक्लोज्ड, अब थोड़ा इसका ग्राफ बनाना होगा बिकॉज यू कैन सी y इक्वल टू 16 बाई एक्स प्लस 4, तो इसका हाउ ग्राफ विल लुक लाइक एट एक्स इक्वल्स -4 इट विल गो टू, ओके, नॉट डिफाइंड एग्जैक्ट एट -4 इट्स नॉट डिफाइंड, एट एक्स इक्वल 0 इट्स 4, ठीक है। So if you'll differentiate, you can clearly say it's -16 by x plus 4 whole square. It means its derivative is always negative. Negative means function is always decreasing. तो decreasing अगर function है तो function क्या दिखेगा, माइनस इन्फिनिटी से आके कुछ ऐसा रहा होगा, और फिर when x is infinity it will be in ICU, तो कुछ ऐसा दिखा होगा। तो फंक्शन का ग्राफ द मोमेंट यू हैव ड्रॉन, देन x plus y equal to 6 is not like because this is x equals -4. At x equals -4, you know a value of y, so this is x and y, okay, so x0 y6, x0 पे y was 4 here for this curve, okay, so 6 will be somewhere here, y0 x6, so we have to find the area enclosed by this curve। अब एरिया इनक्लोज मतलब क्लियरली दिख रहा है, दिस इज दिस पोर्शन, सो इस अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। अब क्या करोगे, अपर कर्व हो गया y इक्वल टू 6 माइनस एक्स माइनस लोअर कर्व इज 16 बाई एक्स प्लस 4 इंटीग्रल dx। अब ये कहाँ से कहाँ है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गेस करना भी यहाँ से काफ़ी आसान है, राइट। वाई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन गेस करना आसान है क्योंकि आप ऑब्जर्वेशन से भी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि क्लियरली देखो तुम्हारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है वो एक जैसे 4 और 2 जैसे कुछ इंटीजर को आप चाहो तो कर सकते हो, या अदरवाइज यू कुड हैव सॉल्व देम आल्सो बिकॉज सॉल्विंग दिस इक्वल्स 6 माइनस एक्स इज नॉट वेरी टफ, इज क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो यहाँ आपका एक वैल्यू जो आने वाला है वो कितना जाएगा, 4 -2 आएगा, लाइक एक्स वैल्यू विल बी 4 एंड अदर एक्स वैल्यू विल बी -2। तो बस क्वेश्चन खत्म है, फ्रॉम -2 to 4 यू कैन क्लियरली इंटीग्रेट दिस, एंड 6 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन पड़ता है, ये लॉन में जाएगा, सो ये कितना आ रहा है 30 - 32 log 2, एंड दैट गिव्स यू
फर्स्ट आंसर। अब विद दिस आंसर कॉन्फिडेंस ऐसे ही आपका बूस्ट कर गया, ठीक है। अभी मैं चेक करता हूँ, ठीक है, सर्कल है, सो थोड़ा टाइम इट विल टेक। डिफरेंशियल इक्वेशन है, इफ़ यू हैव सीन द सिमिलर क्वेश्चन, बिकॉज देयर वाज ए क्वेश्चन इन एनसीईआरटी y डैश इक्वल्स 10x प्लस वाई टाइप का, तो x प्लस वाई वॉज सब्सटीट्यूटेड एज t। तो यहाँ पे भी आइडिया तो दिख गया, दोज हु हैव डन एनसीईआरटी प्रॉपरली। अगर नहीं दिखा तो उसको छोड़ दो फॉर द फर्स्ट वन। इवन इफ यू हैव अंडरस्टूड द आइडिया, इज बेटर टू लिव इट फॉर द फर्स्ट को, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग। 10 इज वे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, सो इफ यू आर कंसेप्चुअली गुड, इसको तो पक्का सॉल्व करेंगे इन फर्स्ट को। ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बिकॉज इट्स बेस्ड ऑन यू सी ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला यू ऑलरेडी नो, ए डॉट सी बी वैक्टर माइनस ए डॉट बी सी वैक्टर। बिकॉज एनी जे एडवांस कैंडिडेट और जो मेंस का सीरियस बच्चा है उसको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। 12th एफ ऑफ एक्स फाइंड कर रहा हूँ, इस टाइप का क्वेश्चन इज अगेन नॉट न्यू, ये प्रीवियस मेंस में ऑलरेडी आ चुका है 2023 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 13, अब पहला आप देख के ही सर्कल दिख रहा है, दूसरा एक्स प्लस आई वाई पुट करना होगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट व्हाट विल बी द लोकस। तो वहाँ से एक लाइन का इक्वेशन आएगा और फिर हम करेंगे, इट मीन्स इट हैज़ टू बी डन। AP JP का डैम इजी प्रॉब्लम्स। मैट्रिक्स में वी वांट डेट ऑफ एक्स, क्वेश्चन पर होगा, अच्छा तो डेट ऑफ एक्स इज डेट ऑफ ए ट्रांसपोज, अच्छा इसका मतलब डेट का प्रॉपर्टी फाइंड कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू फाइंड ऑल दिस मैट्रिक्स क्योंकि वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। अब प्रोबेबिलिटी में अभी देख के ही छोड़ दिया क्वेश्चन को, ठीक है। ये तो क्लास 10 का क्वेश्चन लग रहा है जो आपका छोटा भाई गोलू भी बना देगा। तो ये तो क्लियरली बिकॉज इस कंजुगेट इज दिस, सो इट विल बी टी टू द पावर एक्स प्लस 1 बाई टी का पावर एक्स वाला फंडा, तो इसको करेंगे फर्स्ट टाइम, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, इफ़ यू आर गुड इन PNC, इफ़ यू आर गुड एट PNC तब तो यू विल डू इन फर्स्ट केस, अदरवाइज इसको छोड़ दो। इसेंट्रिसिटी दिखा और खा जाओ बिकॉज इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन जस्ट वन फार्मूला ऑफ इसेंट्रिसिटी विच इज NCERT, नॉट अ बिट मोर देन दैट, ओके। इसेंट्रिसिटी इन केस ऑफ एलिप्स विल बी 1 प्लस छोटू ए स्क्वायर बाई ग्रेटर स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। हाइपरबोला में इट विल बी, sorry, in case of ellipse eccentricity square will be 1 minus b square by a square where b is small and a is large. In case of hyperbola it's 1 plus b square by a square. ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा। 10A 10B 10C, ठीक है, हमको a प्लस बी फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी ये प्रीवियस JEE मेंस 2022 का डायरेक्ट आइडिया है, 10A प्लस बी कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट गो में इसको आप कर सकते हो या छोड़ सकते हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 6, सिंपल काउंटिंग है तो इसको कर लेंगे। 2 कॉमन AP वाला क्वेश्चन इज स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इट्स वेरी स्टैंडर्ड बाबू बिकॉज ऑलरेडी सो मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन लास्ट 2022 जैन सेशन एंड अप्रैल सेशन में भी। कॉपिशन टॉपिक्स का था थोड़ा कैलकुलेशन लग रहा है, छोड़ दे क्योंकि एनी वे यू हैव टू सेलेक्ट 5 क्वेश्चन, तो चलो हम 5 सेलेक्ट करते हैं। एक इसको किए 2 3, और ये थोड़ा फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है। दोज हु आर गुड एट कैलकुलस आप कर सकते हो लेकिन इसको छोड़ते हैं, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन लग रहा है तो कैलकुलेशन करने में हो सकता है मिस्टेक आ जाए, दैट्स वाई आई लीव दिस इन द फर्स्ट गो। XT नहीं है, शॉर्टेज डिस्टेंस, हाँ ठीक है, इसमें कुछ नहीं आएगा कैलकुलेशन में मिस्टेक क्योंकि ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, सो आई डोंट हैव टू थिंक फॉर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये भी 28 बेसिक सेट का क्वेश्चन है, अगर आपका सेट अच्छा है तब करो, नहीं तो फिर तुमको कॉम्प्लेक्स नंबर करना होगा इफ़ यू वांट टू गेट 100%, ठीक है। 30 तो पकड़ के इस क्वेश्चन को डेफिनेटली विल ईट क्योंकि ये दिख रहा है यहाँ चाइनीज एक्सप्रेसिस एक्सपोनेंशियल स्पेसिस। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड फॉर द 100 टाइम, किंग्स रूल लगा के उड़ाओ और फिर डाइवर्ट करो। तो ऑलरेडी आई थिंक 5 क्वेश्चन आई हैव सेलेक्टेड, अगर नहीं तो एक और तुम सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑफ कोर्स लाइक व्हेन आई हैव डन दिस सिलेक्शन, अब देखो ऑलमोस्ट 7 to 8 मिनट हैज़ गॉन सिंस आई एम एक्सप्लेनिंग, तो आपको एग्जाम में यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन, ठीक बना सकते हो। अब देखो इस सेशन में 40 मार्क्स पे 99% आया है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। इस सेशन में 40 मार्क्स पे 99% आया है। ऑलरेडी 99% हम बिना पेन टच किए हुए निकाल सकते हैं, ठीक है। नॉट एज ए टीचर, लाइक ऑफ कोर्स आप 98 तो निकाल ही सकते हो क्योंकि देखो हम कुछ प्रॉब्लम को कैसे स्मार्टली किल करेंगे ऑप्शन से, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द गेम और कॉन्सेप्चुअली लेट्स सी हाउ वी कैन मर्डर दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट कुछ हो रहा था, सेकंड थर्ड क्वेश्चन को पकड़ा, अब थर्ड क्वेश्चन को पकड़ा, ऑप्शंस दिखा, ठीक है। अब वन वे क्लियरली यू कैन डू इज किंग्स रूल बिकॉज फ्रॉम किंग्स रूल यू कैन किल दिस, क्योंकि जैसे ही किंग्स रूल लगाओगे π/4 - x आएगा, ये x गया, sin 4 cos 4 आया। अब यहाँ से अगर हम 2x को t मान लें तो दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू 0 to π/2। अब दिस इज sin 4t प्लस cos 4t, ठीक है। एंड दैट्स स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। स्टैंडर्ड प्रॉब्लम कैसे, क्योंकि दिस कैन बी रिटन इन 10 in secant pair, so it will be secant like 4x and that will be 1 plus tan 4x।
अब सेकंड 4x में सेकंड स्क्वायर लिखो, 1 + 10 स्क्वायर लिखो। अब ये आ गया एनसीईआरटी मॉडल, क्योंकि इफ़ आई टेक 10x एच टी और u 1 + u4 1 + u स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर विल गिव du। अब देखो दिस इज लाइक क्वाड्रेटिक बाय क्वाड्रेटिक, और इसको स्टैंडर्ड कैसे सॉल्व करते हैं, डिवाइड बाय u स्क्वायर, सो u स्क्वायर बाय 1 + u स्क्वायर। दिस इज स्टैंडर्ड मॉडल बाबू, वेरी स्टैंडर्ड मॉडल। Okay, so don't tell how this idea will come. This is well ready-made idea. You can see my playlist also. तो थर्ड क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया, क्योंकि इसको अगेन वी कैन राइट डेरिवेटिव ऑफ व्हाट इज 1 u एंड 1/u स्क्वायर लाने के लिए -1/u चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ऐसे +2 लिख दिया। अब इसको w पुट करो, ये tan इनवर्स में जा रहा है, फिर 0 से π/2 करो, आंसर आ गया। ये तो हुआ इसका एक सॉल्यूशन, बट वी कैन किल दिस स्मार्टली ऑल्सो। अगर कोई अब स्मार्ट बच्चा होगा ना तो ऑप्शंस को ट्रैक कर लेगा। देखो कैसे, दिस इज √2π²32, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, 4√2/32, ये आ जाएगा कितना, इफ़ इट इज़ 32 अगर लाएँ तो 1/√2, और इसको 32 लाएँ, सो आई हैव टू मल्टीप्लाई विद 2, इट्स 2√2π²32। ठीक, तो पूरे ऑप्शंस को ऐसे कर लिया π²32 के मल्टीपल में। अब देखो नाउ 0 to π/4 में विल रफली एस्टिमेट दिस इंटीग्रल, ठीक है, एंड दिस इज ऑल्सो इन योर जेई सिलेबस, दिस इज नॉट अ टुक्का। अब ये तो पता है जो sin 4 to x और cos 4 to x कैसा बिहेव करेगा, सिंस x इज डांसिंग फ्रॉम 0 to π/4, सो 2x विल डांस फ्रॉम 0 to π/2। ठीक है, तो sin 4t प्लस cos 4t का नेचर कैसा आएगा, हाउ द नेचर विल बी व्हेन t इज 2x इज बेसिकली t इज रनिंग फ्रॉम 0 to π/2। तो ये तो बहुत ही आसान है, आप सिमेट्रिसिटी से भी चेक कर सकते हो। 0 पे 1 आने वाला है, π/2 पे 1 आने वाला है, एंड बाई सिमेट्रिसिटी π/4 पे इसका मिनिमम वैल्यू या मैक्सिमम आएगा। तो यहाँ π/4 पे कितना जाएगा, 1/√2 होल 4 × 2, बिकॉज साइन एंड कॉस इज इक्वल, तो 1/2। इसका मतलब फंक्शन का ग्राफ रफली ऐसा आया। इट मीन्स व्हाट आई एम टेलिंग इज डिनोमिनेटर का मिनिमम वैल्यू इज हाफ, चेक कर लो, मैक्सिमम 1 है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक डांस करेगा। ये मिनिमम जब हाफ होगा तब ये मैक्सिमम इंटीग्रेशन का वैल्यू पॉसिबल है, वो है 2x, मीन्स 2x²/2, बिकॉज 2x dx को इंटीग्रेट करना होगा, सो दैट विल बी x² विच इज π²/16। Clear? It means maximum value of this integral is π²/16, ठीक है, which means 2π²/32। तो 2π²/32 से तो बड़ा आंसर हो ही नहीं सकता है, तो ऐसे ही 4√2/32 गया, ठीक है, 2√2π²/32 गया, क्योंकि ये भी उससे बड़ा आंसर है। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, √2π²/32 या फिर यहाँ पे कितना है 1/√2π²/32। अब फिर अगर हम लोअर बाउंड करें, सो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर विल बी 1, मैक्सिमम वैल्यू विल बी 1। तो मैक्सिमम वैल्यू जब 1 है तो फिर मिनिमम वैल्यू ऑफ ये इंटीग्रेशन जो है वो x²/2 पे जाएगा, 0 to π/4, इट मीन्स π²/32। इट मीन्स आई नो सम वेयर एवर आंसर इट इज बिटवीन π²/32 से लेके π²/16 तक, 2π²/32 तक। अब तुम देखो इस दोनों में से कौन सा आंसर है, तो π²/2 से लेके 2π²/32 के बीच में ओनली थर्ड ऑप्शन इज देयर, क्योंकि सेकंड ऑप्शन भी नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन क्या है, π²/32 से कम, तो उससे तो कम फिर आंसर पॉसिबल ही नहीं है, तो आंसर 3 हो गया। सो विदाउट एनी कैलकुलेशन, किंग करके, क्योंकि इस पर आपको कोई भी बच्चा जो टॉपर भी होगा ना उसको 5 मिनट लगा होगा मिनिमम, और स्मार्ट बच्चा इसको 20 सेकंड में किल कर देगा नीचे देख के। सो आई होप यू गॉट दिस आइडिया। अब ये आइडिया देखो फिर इसके दूसरे क्वेश्चन में भी थोड़ा यूज हो सकता है आपको, मतलब एक प्लानर देने के लिए, एक डायरेक्शन देने के लिए। तो यहाँ तो कॉन्फिडेंस के साथ क्वेश्चन को उड़ाया। अब क्वेश्चन 4, इसको ऑफ कोर्स वी कैन डू कंटिन्यूटी के हिसाब से इसको कर सकते हैं, क्योंकि सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस तो इसको ब्लाइंडली क्या करना है, तीनों पे जो वैल्यू होगा वो तो आपका सेम हो जाएगा, राइट। तो x 0 पे होगा इधर से, या फिर 1 पे होगा वो सेम हो जाएगा। तो ब्लाइंडली x 0 करो, तो x अगर हमें 0 करूँ तो इसका लिमिट कितना आने वाला है, सो इस 0/0 फॉर्म में तो जाना चाहिए ना, तो a - b/0, इट मीन्स a को तो b होना ही होगा कंटिन्यूटी के लिए, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू मैच करेगा। नेक्स्ट x अगर 0 इस साइड से करूँ तो वो 2 होगा, ठीक है, और नेक्स्ट x अगर मैं 1 करूँ तो 1 विल गिव 3 फ्रॉम दिस साइड एंड 1 इज गिविंग 3 + c फ्रॉम दिस साइड। तो यहाँ से तो कंटिन्यूटी के कारण वैल्यू ऑफ c 0 एंड a = b, ठीक है। f इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर इन R। अब कंटिन्यूस है तो इसका लिमिट भी x टेंस टू 0 पे 2 आना चाहिए, ठीक है।
अब लिमिट इसका क्या होगा, एक्स टेंस टू जीरो पे। अब ए इक्वल टू बी करेंगे तो ए इंटू वन माइनस कॉस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया ए इंटू टू साइन स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वन, तो ये टू ए इक्वल्स टू हो गया, तो ए का वैल्यू वन आ गया, बी का वैल्यू वन आ गया। अब इससे बच्चों वाला क्वेश्चन क्या ही पूछेगा आपको। कंटिन्यूटी के लिए ये तीनों वैल्यू पे ना जो भी बाउंड्री वैल्यूज़ है, जैसे जीरो है तो जीरो को यहाँ से लो वहाँ से लो, दोनों वैल्यू को इक्वल कर दो, फिर वन यहाँ से लो यहाँ से लो, जहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है इक्वल कर दो, वन वन जीरो आ गया। नाउ द पॉइंट वेयर इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल, तो अब फिर क्वेश्चन हो गया आसान, क्योंकि वंस आई नो द वैल्यू ऑफ ए एंड बी वो इक्वल है, तो फंक्शन बन गया वन माइनस कॉस टू एक्स बाई एक्स स्क्वायर विच इज़ बेसिकली टू साइन एक्स बाई एक्स होल स्क्वायर फॉर एक्स लेस देन जीरो, और सी का वैल्यू जीरो है तो एक्स स्क्वायर बाई टू फॉर एक्स बिलोंगिंग टू जीरो टू वन एंड एक्स मोर देन वन पे टू एक्स प्लस वन। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हो सिंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ठीक है, एट दिस पॉइंट, तो हम डिफरेंशिएबिलिटी से चेक करते हैं, बिकॉज इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड इट्स एट एनी पॉइंट ए, इफ एफ डैश ए प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव इज सम फाइनाइट वैल्यू and left hand derivative is finite value but they are not equal, then definitely I can tell it's not differentiable, ठीक है, provided f is continuous। अगर कंटिन्यूस नहीं है तो फिर यू हैव टू गो बाय बेसिक डेफिनेशन। जो कि कंटिन्यूस है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो टू एक्स आ जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे एट एक्स इक्वल टू वन पे टू आया, ये भी एट एक्स इक्वल टू वन पे डिफरेंशिएट करके टू आया, इट मीन्स इज डिफरेंशिएबल एट वन। अब वन के अलावा कहीं चेक करना ही नहीं, बिकॉज लीनियर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। अब ऊपर वाले को देखो ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं, क्योंकि जीरो पे इसका वैल्यू कितना आएगा टू एक्स, इट मीन्स जीरो। नाउ व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होल स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू जीरो, तब यहाँ से यू कैन डू टू है, या तो ठीक है। तो अब टू साइन एक्स वाई एक्स का होल स्क्वायर आ गया फॉर एक्स लेस देन जीरो, तो एस लेस देन जीरो के लिए, फॉर एक्स लेस देन जीरो के लिए इसको मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा और चेक करूँगा उसका डेरिवेटिव जीरो होता है कि नहीं, क्यों, ठीक है, जीरो पे। तो अगर डिफरेंशिएट टू साइन एक्स बाई एक्स और ऊपर वाले का होगा एक्स कॉस एक्स माइनस एक्स बाई एक्स स्क्वायर, फिर से वो वापस साइन एक्स बाई एक्स तो वन है, फिर से वापस लॉपिटल लगाओ तो एक्स कॉस एक्स का कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, कॉस गया एक्स गया माइनस साइन एक्स बाई टू एक्स टेंस टू जीरो, ये हो गया स्वा लड्डू। इसका मतलब यहाँ से डेरिवेटिव जीरो आया, उधर से भी डेरिवेटिव जीरो आया, तो फंक्शन अगर कंटिन्यूस है और दोनों तरफ से डेरिवेटिव जीरो है तो पक्का डिफरेंशिएबल हो गया यहाँ, ठीक है, फंक्शन अगर कंटिन्यूस है तो, ठीक है। अगर फंक्शन ऑसिलेटिंग है तो फिर आपको फंडामेंटल यूज़ करना होगा बेसिक का, यहाँ पे तुम बेसिक का भी यूज़ कर सकते हैं डेफिनेशन से करोगे जीरो पे तो डेरिवेटिव आएगा एफ एच माइनस एफ जीरो बाई एच लिमिट एच टेंस टू जीरो। तो जैसे ही तुम एफ जीरो का वैल्यू यहाँ से पकड़ेगा फंक्शन, ठीक है, लेकिन एच टेंस टू जीरो प्लस यहाँ से डिफाइन होगा आगे वाले से, जीरो माइनस पीछे वाले से। एनीवे अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया, डिफरेंशिएबल तो हर जगह है, सो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी तो जीरो आ गया, ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू वन है, बी का वैल्यू वन है, सी का वैल्यू जीरो है, आंसर टू आ गया, सब ऐड कर दो। तो यहाँ से भी ये क्वेश्चन गया बहुत ही आसानी से। अब इफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस दिस एंड दिस, अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस जो है, अब उसको पता है आपके पास एक लाइन अगर ये है तो फर्स्ट वाला लाइन इज पासिंग थ्रू लेमडा टू वन इन द डायरेक्शन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, आई हैव गिवन अ फुल लेक्चर ऑफ 3D का फील। सेकेंड इज पासिंग थ्रू न्यूमरेटर रूट 3 1 2, क्योंकि ये डालने से ये जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिनोमिनेटर 1 माइनस 2 1। अब आप डायरेक्टली फाइंड कर लो, क्योंकि ये एक वेक्टर क्रिएट हो जाएगा लेमडा माइनस रूट 3 2 माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1, ठीक है। ऐसे ही डायग्राम बना लिया करो एग्जाम में। अब इसका कंपोनेंट सपोज दिस इज एक्स ए वेक्टर,
तो अगर हम ए का कंपोनेंट लेंगे n1 क्रॉस n2, इफ दिस n1 एंड n2 इज डायरेक्शन, तो आ जाएगा दिस बॉक्स डिवाइड बाय n1 क्रॉस n2 का मैग्नीट्यूड। बस इसका डेट कैलकुलेट कर लो, क्योंकि दिस इज डेट ऑफ ए का कंपोनेंट लैम्डा माइनस 3 ब्ला ब्ला, फिर √3 -2 1 1 n1 इट विल बी एसटीपी राइट। और तीसरा हो जाएगा आपका -2 1 -2 1। इसके डेट को डिवाइड कर दो इसके मैग्नीट्यूड से, और जो आंसर आएगा उसको 1 से इक्वेट करो। सो you'll get I think either 1 value or 2 value, and remember like mod will be there in the picture, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इज mod, तो वहाँ से कैलकुलेट कर लो एंड दैट विल गिव द आंसर। सो आई होप दैट इज़ क्लियर। तो ये आपको बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम आ गया। द मोमेंट you'll see this problem you should be tempted to solve this at the first go, ठीक है। तो यहाँ से तो ये भी प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसेंट्रिसिटी वाला है। आप इसेंट्रिसिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे? ये तो डायरेक्ट फार्मूला से आ जाएगा राइट। इसेंट्रिसिटी वाले प्रॉब्लम्स तो डायरेक्ट फार्मूला से आ जाएंगे। इन केस ऑफ इलिप्स दैट विल बी 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स 1/2 स्क्वायर करने पे। इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम 2b स्क्वायर बाई डायरेक्ट फार्मूला 14, ठीक है। तो अब इस दोनों से मुझे कैलकुलेट कर गया ई ऑफ एच क्या होगा, हाइपरबोला 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, एंड दैट विल गिव यू 1 प्लस √1 प्लस 1/2, सो √3/2। सो आंसर इज 3/2। अरे इससे आसान क्वेश्चन क्या ही पूछेगा। चलो एरिया बाउंडेड वी हैव ऑलरेडी डन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा कर ले, आया उसी को उड़ाओ, ठीक। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज ये दैट वाला विच आई वाज टेलिंग, so we have to find that of x, and x they have defined in this. So what is that of x? Clearly is that of A transpose, that of C square, and that of A. Now by property of determinant, that of A transpose is same as that of A, and that of C square is that of C whole square, and that of A. अब फिर C को डिफाइन किया है। So what is that of C? It's that of A, that of B, and that of A transpose is same as that of A. तो अब ये तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो गया, क्योंकि दिस इज that of A स्क्वायर B, ठीक। तो C स्क्वायर कितना हो गया, ये A4 B स्क्वायर का दैट एंड दैट ऑफ ए। अब फिर ये आपस में मिल के आ गया 4 5 6, दैट ऑफ ए टू द पावर 6 एंड दैट ऑफ बी स्क्वायर। अब दैट ऑफ ए तुमको मिला है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से मिल गया, दैट ऑफ ए 3 है, देखिए कितना 1 2 + 1 3। दैट ऑफ बी कितना है, 1 है। आंसर क्या गया, 3 स्क्वायर, ये है ना। सो दैट ऑफ बी इज 1 एंड दैट विल बिकम व्हाट, 3 टू द पावर 6। 3 का पावर 6 इज 3 स्क्वायर 9 into again 9 into 9, so 81 into 9 that will give 729. I think this is the easiest question of the entire test, क्योंकि आपको सिर्फ that of A into B is that of A into that of B. Of course matrix is of same nature, ठीक है, like n क्रॉस n, तो यहाँ पे 3 क्रॉस 3 था, जस्ट डायरेक्ट प्रॉपर्टी से बन गया। नेक्स्ट बैक कंटेंट्स वाला, उससे पहले वी कैन सॉल्व इवन दिस चिंटू मिंटू प्रॉब्लम, ठीक है। अब इस चिंटू मिंटू को प्रॉब्लम को क्या करें, एज यू कैन सी दे आर कन्वर्ज ऑफ ईच अदर। सो इफ √3 + √2 होल एक्स, इस पूरे को अगर मैं टी मान लूँ तो दूसरे वाला कितना हो जाएगा, 1/t, t + 1/t इज 1 इज 10। इवन इन एग्जामिनेशन यू शुड नॉट री राइट द क्वेश्चन, इट विल किल योर टाइम, ठीक है। आराम से यहाँ कर लो, कॉन्फिडेंस से अब लिखो, t + 1/10 विल गिव t स्क्वायर -10t + 1 इज लड्डू। सो t का वैल्यू इज कितना आया, 10 ± √96/2, 14 and 4, so 5 ± 2√6। अब t है क्या, √2 + √3 का पावर x, तो ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ऑलवेज स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा है 5 + 2√6, ये आएगा ना। तो नेगेटिव, अब देखो अब यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, क्या मिस्टेक किया, जैसे ही 5 - 2√6 को मैंने देखा, अब दिस हैपन्स व्हेन यू डू टू मच प्रैक्टिस राइट, क्योंकि माई ब्रेन इज लोडेड विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, सो यू सी दैट्स वाई आई डिड मिस्टेक। अब आपको भी ऐसा ही मिस्टेक आप बिल्कुल करोगे। 5 - 2√6 देखा, तुमको लगा नेगेटिव है और ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो एक सॉल्यूशन हो जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 5 - 2√6 ये पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसे, √6 इज 2 पॉइंट समथिंग। अच्छा, अब तो जैसे ही 2 पॉइंट समथिंग है, क्योंकि ये तो ये कितना हो जाएगा, 4 पॉइंट समथिंग, एंड 5 - 4 पॉइंट समथिंग इज पॉजिटिव। तुम बोलोगे सर बट हाउ यू आर श्योर, अगर 2.9 है या 2.7 तो 5 से क्रॉस कर जाएगा, तो कन्फ्यूजन है। तो इमेजिन करो 5 अगर ग्रेटर है 2√6 से, स्क्वायर करो, 25 विल बी ग्रेटर देन 24, तो ये तो सही जवाब है। इसका मतलब दोनों का दोनों पॉजिटिव वैल्यू है। सो हाउ मेनी रूट्स विल बी देयर, 2 वैल्यूज ऑफ x विल गेट
क्योंकि when for this strictly when the output is this we'll get 1x special x alpha other x beta. The answer 2 and not 1. I'm sure some of you must have done this mistake here in this problem. मोस्ट ऑफ यू वो तो ये क्वेश्चन बना ही नहीं पाओगे क्योंकि तुम स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बनाना शुरू करते हो और टाइम आपके पास नहीं रहता है. सो जेईई इज़ नॉट अबाउट यू नो लाइक जस्ट टेस्टिंग योर नॉलेज. 40% इनफैक्ट आपका स्मार्टनेस टेस्ट कर रहा है जेईई मेंस, एंड जेईई एडवांस तो 60% तक आपका स्मार्टनेस टेस्ट करता है. आर्ट ऑफ सेलेक्टिंग प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बाबू. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पीएनसी को सॉल्व करे तो वो भी कर सकते हो, और अदरवाइज यू कोड टेक सिंपली दिस इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन. ठीक है, अब ये इसेंट्रिसिटी क्वेश्चन भी डायरेक्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इज गिवन, इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज गिवन. तो इसमें आई डोंट थिंक आई विल वेस्ट माय टाइम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ठीक है, आप खुद से कर लीजिएगा 1 + b² करके इलिप्स का एंड हाइपरबोला का, सॉरी इट विल बी हाइपरबोला एंड इलिप्स का √1 - b²/a². व्हेनेवर यू राइट b²/a² ऑलवेज यू राइट स्मॉलर बाय बिगर. वाई स्मॉल बाय बिग? क्योंकि 1 - समथिंग फ्रैक्शन तब तो इलिप्स बनेगा. इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स इज लेस देन 1 और हाइपरबोला का 1 से ज़्यादा होता है. ठीक है, तो हाइपरबोला के केस में स्मॉल बाय बिगर नहीं होता है, वो ट्रांसवर्स एक्सिस बाय, ठीक है, कंजुगेट एक्सिस बाय ट्रांसवर्स एक्सिस. एनीवे यहाँ से भी करके ये क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हो. नेक्स्ट, तो ये भी बन गया. नेक्स्ट इज 10A 10B 10C दिया हुआ है. अब यहाँ पे ABC π/2 एंड x 0 नहीं है. ठीक है, क्योंकि x अगर मैं 0 लूँ तो 10 का वैल्यू कितना जाएगा, देखो ये क्वांटिटी कितना जाएगा, ये आ जाएगा π/2 जो कि अलाउड नहीं है. इनफैक्ट यू कैन टेल लाइक इवन इन लिमिटिंग केस आई कैन चीट, लेकिन फिर भी लेट्स लीव इट. तो एक तो लिमिटिंग केस में भी अगर कोई बच्चा सोचे तो ऐसे चेक कर सकता है, फोर्सफुली यू टेक x टेंडिंग टू 0. ठीक है, मतलब x को मैं 0 नहीं लिया लेकिन बेवकूफ़ बन दिया क्वेश्चन को 0.00001 इफ आई एम टेकिंग. तो एक्जैक्टली π/2 नहीं आएगा, π/2 से थोड़ा छोटा आएगा बिकॉज पॉजिटिव इन्फिनिटी. तो इट विल बी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट लाइक 89.99. सो दैट्स अलाउड. अब दूसरा वैल्यू 0 आ जाएगा. तीसरा, फिर x को मैं 0 लिया तो ये भी π/2 आ जाएगा एंड पॉजिटिव 0 लिया है, सो लिटिल लेस देन π/2. अब इन दैट सेंस यू कैन टेल c इज लिटिल लेस देन π/2, a इज ऑल्सो लिटिल लेस देन π/2 एंड b इज लड्डू. तो ये a का वैल्यू आया, b का, सॉरी ये c का, और b का वैल्यू ये है. तब यहाँ से ऑप्शन c तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि π/2 माइनस π/2 तो a होगा ही नहीं, लाइक a + b, बिकॉज a + b इज π/2. π - c भी पॉसिबल नहीं है. ठीक, क्योंकि c का वैल्यू π/2 है, तो π - π/2, अच्छा ये पॉसिबल है. ठीक है, 2π - c पॉसिबल नहीं था. आंसर या तो 2 होगा नहीं तो 4 होगा. अब फिर आई डोंट वांट टू कैश स्ट्रेटजी क्योंकि मुझे तो फुल परसेंटाइल लाना है, तो ये गया. ठीक है, वैसे इन एग्जामिनेशन ये थॉट आपको आएगा ही नहीं 0 ले, क्योंकि 0 पे तुम थप्पड़ खा रहे हो. तो बेटर था इस पे क्या लेना, एक सिंपल वैल्यू लो जहाँ पे कोई टेंशन ना हो. तो बेस्ट वैल्यू था x को 1 ले लेते हैं, क्योंकि x को अगर 1 लेंगे तो ये वैल्यू कितना जाएगा, 10a = 1/√3. अब देखो 10b क्या आ गया, 1/√3, पुट करो x1. और 10c क्या आ गया, ये भी मजा आएगा, 3 का पावर हाफ मीन्स 10c का वैल्यू आ गया √2. अब देखो क्वेश्चन को फिर 10 सेकंड में किल कर दिया. आई वांट a + b, तो a + b के लिए डिमांड इज 10a + b से ही जन्म होगा a + b का, 10a + 10b, सो 2/√3 बन गया बाई 1 - 10a 10b, सो 1 - 1/3. सो ये बन गया अपने पास 2/3. 3 कैंसिल, सॉरी 2 कैंसिल एंड 3/√3 इज गिविंग √3. ठीक है, so इसके लिए what I can do, motivation is 10a + 10b, so 10a is 1/√3 plus 10b, that is also 1/√3 by 1 - 10a 10b, so 1 - 1/3, so that gives 2/√3 into 3/2, so 2 cancel और 10c का वैल्यू √3 है नहीं, बिकॉज 1 + 1 +, so that's √3. अब तो मजा आ गया बिकॉज 10a + b is giving the value of 10c. ठीक है, और तीनों एक्यूट एंगल है बिकॉज आप तीनों का वैल्यू देख सकते हो कितना है, π/2 से छोटा है, तो π/2 से छोटा है, इनफैक्ट π/4 से भी छोटा है, क्योंकि ये 1 होगा तो π/4 होगा. तो π/4 से छोटा 2 एंगल को ऐड करेंगे तो ठीक है, तो π/4 से बड़ा एंगल आएगा. तो इनफैक्ट द ओनली सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन इन दिस केस विल बी a + b = c. a + b π - c नहीं हो सकता है क्योंकि ये π/4 से छोटा है, ये भी π/4 से छोटा है.
ठीक है। तो इसको जब ऐड करो a प्लस बी को, आंसर पाई बाई 2 से छोटा होना चाहिए। तो आई होप यू गॉट आंसर, इसी डायरेक्टली आ गया। तो इसको तो स्कैम कर दिया। इनफैक्ट स्कैम नहीं है, ये बहुत ही स्मार्ट स्कैम है। ये स्कैम करने के लिए भी आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ मैंने मैनिपुलेशन का यूज किया 10 a प्लस बी, बट अगेन आई एक्सपेक्ट लाइक इफ समवन इज गेटिंग 95 परसेंटाइल अबव, इतना तो उसके पास दिमाग है जो ऐसा आराम से स्मार्टली कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट एक्स वाई जेड। अब इसको तो सुपर स्कैम बोलो या फिर सुपर टेक्निक बोलो। आई स्टार्ट विद जेड, सो विल प्ले विद जेड। जेड का वैल्यू इफ विल टेक व्हाट 0, आई गेट एक्स प्लस 2y इक्वल्स 42। अब यहाँ से अगेन विल प्ले विथ y, सो y0 विल गिव सम x, y1 विल गिव सम x, ऐसे ऐसे y 14 देगा, 15 16 16 विल गिव y अप टू 20, 20 विल गिव 40 and 21 will give 42. It means how many values of corresponding to z equal to 0? We have 22 values of 22 pairs of x and y. Clear? अब ऐसे ही आप क्या कर सकते हो, दूसरे के करस्पॉन्डिंग कर सकते हो। तो सपोज लेट मी राइट, जेड अगर 1 करोगे तो यहाँ से यू कैन काउंट फास्ट, ठीक है, क्योंकि जेड अगर मैं 1 करूँगा तो यहाँ से हाउ मेनी पेयर्स इट विल गिव, इट्स गिविंग यू x plus 2y is 20, sorry 39, so 39 means y can go to 39 by 2, 19 point something. It means y can go from 0 1 2 till 19, so 20 solution. Again z if I'll take 2, then we'll get 19 solution. अगर 3 ले z, so we'll get 17 solution, 4 पे 16 solution, 5 पे 14 आ रहा है। जैसे divide this answer by 2 and add and subtract 1, that's it। ऐसे ही 11 पे we'll get 5 answer, 12 पे z, 12 पे how much we are getting, 12 पे we'll get x plus 2y equal to 6, 4 answer, 13 पे we'll get 2 and 14 पे x plus 2y 0, 0 0 is the only solution 1। अब इस सबको ऐड कर दीजिए, 5 9 2 11 165 plus 4 169, so this gives 169। ऑफ कोर्स अब ये कैलकुलेशन थोड़ा आपको सीरियसली करना होगा, बिकॉज आई ए टीचर इवन इफ आई डू मिस्टेक इट्स फाइन, आप मिस्टेक करोगे तो आप जाओगे, ठीक है। कैलकुलेशन में तो एज ए टीचर हम अफोर्ड कर सकते हैं मिस्टेक करना, आप नहीं, ठीक है। एज ए टीचर आई शुड नॉट डू कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, एंड एज ए स्टूडेंट ऑफ कोर्स यू डोंट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, देन यू गेट 100%। थोड़ा हो भी जाए तो कॉन्सेप्चुअल हो तो चप्पर भी चलेगा, लगे कैलकुलेशन में तो नहीं होना चाहिए, आता हुआ सवाल नहीं होना, मतलब बन जाना चाहिए। नेक्स्ट इज दिस इज एन ए पी एंड दैट इज अनदर ए पी, देन द सम ऑफ कॉमन टर्म्स। अब आपको पता है कॉमन टर्म्स ऑफ 2 ए पी क्या होता है। फर्स्ट दैट कॉमन टर्म्स विल बी अ न्यू ए पी हैविंग कॉमन डिफरेंस एज डी एंड लेट्स से फर्स्ट टर्म इज ए। तो फर्स्ट टर्म तो आपको यहाँ से ट्रैक करके पकड़ लोगे क्या होगा, क्योंकि इसका फर्स्ट टर्म देख रहे हो 3 7 11 15 जा रहा है, 2 5 8 11 जा रहा है, तो फर्स्ट टर्म तो दिख गया, इस ए पी का 11 होने वाला है। अब कॉमन डिफरेंस जो आया नया ए पी उसका क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस विल बी एलसीएम ऑफ D1 and D2, मीन्स कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट ए पी एंड सेकेंड। तो फर्स्ट ए पी का कॉमन डिफरेंस 4 है, सेकेंड ए पी का कॉमन डिफरेंस 3 है, तो नया ए पी जो बनने वाला है दैट विल स्टार्ट विद 11, नेक्स्ट टर्म जो होगा 11 + 12 होगा, नेक्स्ट टर्म 11 + 2 × 12 ऐसा चलेगा, ठीक है, बिकॉज इट्स एलसीएम ऑफ 4 and 3। वाई इट्स एलसीएम ऑफ 4 and 3? वेरी सिंपल, इफ गोलू इज you know like jumping in a step of 4 and Bholu is jumping in a step of 3, so when for the first time they will jump again from the starting point, कब मीट करेगा, ठीक है, 12 की लेंथ पे, क्योंकि 12 के बाद एग्जैक्टली वो 3 मल्टीपल कर रहा होगा और ये 4 मल्टीपल कर रहा होगा। इट जस्ट लाइक क्लास 4 प्रॉब्लम जो बच्चे में आपके पापा मम्मी बता देते हैं, अब बेल रिंग्स एवरी 2 minutes, अनदर बेल रिंग्स एवरी 3 minutes, दे विल रिंग अगेन आफ्टर द फर्स्ट टाइम इन एवरी 6 minutes, ठीक है। तो यही बेसिकली दिस इज द फंडामेंटल हार्ट एंड कोर कॉन्सेप्ट ऑफ पीरियडिसिटी। आप जब पीरियड निकालते तो एलसीएम ही क्यों लेते हो, ठीक है, एचसीएफ क्यों नहीं लेते हैं, ऐड क्यों नहीं करते, तो ये बेसिक आइडिया था, क्योंकि फंक्शन एलसीएम पे रिपीट कर जाएगा, इनफैक्ट फंडामेंटल पीरियड उसको बोलते हैं। एनीवे, तो ये क्वेश्चन भी तो गया, आप आराम से इसको फर्स्ट टर्म और वो कर लोगे, तो N33 नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 33 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि आप देख सकते हो इन सम ऑफ कॉमन टर्म्स, क्योंकि लास्ट टर्म 404 पे दे रखा है 403 पे, सो इट्स बेटर जो बिकॉज आफ्टर 403 एनी वे यू विल नॉट हैव नथिंग कॉमन। तो यहाँ से आप देखोगे 33 बिकॉज लास्ट टर्म कर लो a + n - 1 एंड वहाँ से यू नो द वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। सो इफ विल कैलकुलेट दिस इज 33/2 और कितना है 22 + 32 × 12 आएगा ना, n + 1, हाँ, एंड दैट्स गिविंग अस 6699। सो दिस वॉज अ गुड क्वेश्चन बट वेरी स्टैंडर्ड। 2 भी गया, 20 भी गया।
इसको आप थोड़ा अगर कैलकुलस आपको सही पता है, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या होता है, देखो इस प्रॉब्लम का आइडिया कुछ खास था नहीं। 0 प्लस में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज सेम एज एक्स वाई, बिकॉज 0 प्लस 0.001 का फ्रैक्शनल पार्ट वही नंबर हो जाएगा। लेकिन इफ़ आई टेक लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, तो इमेजिन करो माइनस 0.9 लोगे तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, ये माइनस 0.9 तो नहीं होगा, नाइदर इट विल बी 0.9, ये 0.1 हो जाता है। ठीक, तो अब 0.1 कैसे लाएंगे, माइनस 0.9 से इसमें 1 ऐड कर देंगे तो वो आंसर आएगा। इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस 0.7 जो है वो कितना आ रहा है 0.3, तो इसका कॉन्जुगेट, तो इनफैक्ट ऐड कर दो इसमें, जो भी एक गोलू है उसमें ऐड कर दो माइनस 0.7। दैट्स वाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स ऑलवेज याद रख लीजिएगा 1 प्लस एक्स होगा व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 माइनस, एंड इट विल बी सेम एज एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 0 प्लस। अगर ये आइडिया है तो क्वेश्चन खत्म है। 0 प्लस में ओपन कर लो, 0 माइनस में लॉपिटलाइज करो, खत्म। ठीक, 25 देखने में थोड़ा वो लग रहा है। 27 देखो फिर से, इफ द लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइन से इतना इंटरसेक्टिंग लाइन, तो अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला है L1 और L2। ओके, सो वी हैव L1 L2। अब लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी अ लाइन अलोंग कॉमन नॉर्मल, राइट, सो दिस वे अलोंग N1 क्रॉस N2। लेकिन अब ये लाइन का पॉइंट कैसे निकालें, इस पॉइंट पे तो कुछ नहीं, फॉलो वाला लाइन पे पैरामेट्रिक पॉइंट पता है। पैरामेट्रिक पॉइंट मीन्स क्या है, मतलब आई का कॉफिशेंट 1 प्लस लेमडा आई, इट मीन्स एनी पॉइंट कैन बी रिटन एज इन दैट फॉर्म, बिकॉज आर इज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो देखो कोई भी जनरल पॉइंट होगा, आप कंपेयर कर लो आई को आई से, तो एक्स को 1 प्लस लेमडा लिख सकते हैं इस पॉइंट पे, कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट 1 प्लस लेमडा होगा, वाई 2 माइनस लेमडा एंड जेड 3 प्लस लेमडा। ऐसे ही म्यू के फॉर्म में लिख लो 4 प्लस म्यू सेकेंड लाइन पे, एंड 5 प्लस म्यू 6 माइनस म्यू। ठीक है, अब कुछ नहीं है, सिंस वी हैव ऑलरेडी 2 पॉइंट, लेट्स कॉल दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी। इसको ले लिया, ए उस लाइन पे, बी इस लाइन। सो वी नो ए बी वैक्टर। अब वी नो ए बी वैक्टर जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू N1 एंड इज परपेंडिकुलर टू N2। So AB vector is done in terms of lambda mu. So that dot N1 will be 0, you'll get 1 equation. That dot N2 will be 0, you'll get 2 equation. You have 2 equation to unknown, lambda mu आ जाएगा। जैसे ही lambda mu आ गया आपके पास, lambda जैसे ही आ गया, mu फाइंड भी नहीं करना है, एक फाइंड कर लो, ये पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया, डायरेक्शन आ गया, लाइन बता। ठीक है, L1 इंटू पी एन क्यू। अच्छा तुमसे ये पॉइंट ही बोल रहा है, तो ये पॉइंट ए इनफैक्ट क्यू है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड दिस इज क्यू। क्वेश्चन का आप ठीक से पढ़ लीजिएगा, पी एन क्यू इज नोन, मिड पॉइंट क्या हो जाएगा पी प्लस क्यू। ये भी बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। अब देखो ये पेपर ऑलमोस्ट खत्म है, आई थिंक कुछ और प्रॉब्लम्स आई नॉट डन जो आप कर सकते हो, जैसे कि अब ये मॉड जेड माइनस 1 इक्वल्स 1। अगर आपको ज्योमेट्री पता नहीं है तो ब्लाइंडली हर एक क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यू कीप ऑन टेकिंग एक्स प्लस आई वाई। आई एम गिविंग यू गारंटी इन योर जेई मेंस यू डोंट रिक्वायर टू नो एनीथिंग अबाउट कॉम्प्लेक्स नंबर अपार्ट फ्रॉम एक्स प्लस आई वाई इन पोलर फॉर्म। अगर थोड़ा पता है तो आप कर लोगे, जेई मेंस में कुछ ट्विस्ट करेगा ही नहीं, ब्लाइंडली एक्स प्लस आई वाई डालो और कर लो। एक्स प्लस वाई डालोगे तो ये सर्कल आ जाएगा, क्योंकि एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। अब तो रियलाइज कर सकते हो ये एक सर्कल है, सेंटर 1,0 और ये 0 0 से पास कर रहा है बिकॉज रेडियस इज 1। दूसरा एक लाइन बनने वाला है, क्योंकि इफ आई पुट जेड एज एक्स प्लस आई वाई, सो दिस विल बिकम 2x और दिस विल बिकम जेड माइनस जेड वाई, सो 2i वाई। ठीक है, तो ये वो जो बन गया √2 माइनस 1 टाइम्स 2x माइनस 2, सो प्लस 2y इक्वल्स टू √2, 2 गया, वी हैव √2 माइनस 1x। तो ये एक प्यारा सा लाइन बना इक्वल्स √2। अब दिस लाइन एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू √2, मतलब रफली में बोल सकते हैं ये हाइट 1 है तो यहाँ कट करेगा। ठीक है, और फिर दूसरा कहीं कट करेगा, आई डोंट केयर, अंदर बाहर जहाँ से, इनफैक्ट इट विल बी बिकॉज दिस डिस्टेंस इज y 0, √2 बाई √2 माइनस दैट्स मोर देन 2, तो यहाँ कट करेगा। तो नाउ वी हैव 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयर इज ओनली 2 कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 एंड Z2 जो दोनों पे लाई कर रहा है। तो मिनिमम मैक्सिमम का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि a z which lies on a set S is this entire set, this and this, will definitely be only 2 possibilities. The cardinality of set S is 2, Z1 and Z2। आपसे पूछ रहा है if this distance is let's say R1, this is R2। अच्छा तुमसे R1 R2 नहीं पूछ रहा है, this complex number Z1 Z2 you want √2 Z1 minus √2। अब फिर यहाँ पे भी देखो एक ऑब्जर्वेशन है, एंड देन यू कंप्लेन दैट पेपर वॉज लेंदी। ऑफकोर्स पेपर लेंदी है, लेकिन देख रहे हो स्मार्टनेस से तो कोई भी बच्चा आराम से ले आएगा 99.9 परसेंटाइल तक, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर आई डोंट वांट टू कमेंट, राइट। इफ़ योर एनसीईआरटी इज गुड, वो खत्म है पेपर 1.5 आवर। इनफैक्ट सम ऑफ माई स्टूडेंट्स हैव सॉल्व द इंटायर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री टुगेदर इन 50 minutes, एंड दैट्स वाई दे हैव गॉट 99.9 परसेंटाइल, इनफैक्ट 99.99 ऑल्सो। एनीवे, तो आप
मैथ्स में 1.5 आवर दे दोगे तब तो 100% तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ठीक है। अब तुम देखो, अब ये जो पॉइंट है Z1, अब कुछ एक सिंपल पॉइंट इस लाइन पे जैसे हमको पता चल रहा है, ये √2 है ना, √2 -1, और अगर y 1 हो जाए इट मीन्स 1,1 तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है। हम देखते हैं क्या 1,1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, mod z -1 = 1, क्लियरली यहाँ वो भी है, क्योंकि 1,1 तो इस सर्कल का भी हिस्सा है। इसका मतलब वो जो लाइन है वो डेफिनेटली सर्कल को एक पॉइंट पे कट कर रहा होगा 1,1। सो आई ऑलरेडी नो वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर Z1, राइट। तो Z1 का कॉम्प्लेक्स नंबर का हमको मैग्नीट्यूड ऑलरेडी 1 + i हो गया। अब कहने का मतलब है अगर तुम इसको एक्सपेंड भी करोगे तो √Z1 - Z2 होल स्क्वायर, ये जो आएगा ये आएगा 2Z1 स्क्वायर, मतलब इसका मॉड प्लस mod Z2 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जो भी √2Z1 Z2 सो ऑन सो, ठीक है। अब Z1 स्क्वायर इटसेल्फ का मॉड मतलब देख रहे हो ना आप, अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है निगेटिव है, ये भी आप लॉजिकली सोच सकते हो। कैसे लॉजिकली सोच सकते हो? ओके देखो, ये डेफिनेटली यहाँ पे कट करेगा तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो Z1 और Z2 का जो कोऑर्डिनेट आया ये आप कर लो, ये जो होगा वो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, तो इसमें से कुछ निगेटिव घट रहा है, ठीक है। अब इस मैनिपुलेशन से भी, चूंकि ये ऑप्शन थोड़ा टाइट है इसीलिए आप यहाँ से थोड़ा सॉल्व करना मुश्किल है, बट स्टिल आई रिकमेंड, जो अगर चाहो तो तुम कर सकते हो। नहीं तो इन सम प्रॉब्लम अगर ऑप्शंस का गैप ज़्यादा होता तो आप यहाँ से क्लियरली देख सकते थे, जो डेफिनेटली आंसर इससे कम होगा, ठीक है। क्योंकि एनीवे मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, मतलब ये जो वेक्टर है इसका मैक्सिमम मैग्नीट्यूड जो होगा वो 2 से तो छोटा ही होगा, क्योंकि 2 इज द डायमीटर, ओके। ऑल दो माई पॉइंट इज 1 = 1,1। तो दूसरा आप फाइंड कर सकते हो। दूसरा कैसे फाइंड कर सकते हो? या तो x + y को x के फॉर्म में रखो और उसको सर्किल वाले इक्वेशन में पुट करो। अब एडवांटेज क्या है, वन ऑफ द रूट यू ऑलरेडी नो 1, सो फ्रॉम प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक यू नो द अदर वैल्यू ऑफ x डायरेक्टली, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट आपको पता होगा, सो यू डोंट नीड टू सॉल्व एनी क्वाड्रेटिक एंड यू नो 1√1 है, तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर आएगा वही इसका सेकंड रूट हो जाएगा। तो जैसे ही सेकंड रूट हो गया वैल्यू पुट करो, क्वेश्चन खत्म। अब x2 पता है, y फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन में पुट करो, डोंट पुट इन द सर्कल, क्योंकि सर्कल में कैलकुलेशन विल टेक टाइम, तो वो कीजिएगा तो आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। इनफैक्ट ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ तो थोड़ा स्मार्ट एलिमिनेशन वाला है, उसमें से 4 को आप एलिमिनेट कर सकते हो, 1 होगा नहीं, तो टग ऑफ वार 2 and 3 में होता। अब वहाँ पे या तो हनुमान जी का नाम लेके 2 मारो या 3 मारो, जिसको तुक्का स्ट्रेटजी कहते हैं, एंड आई डोंट बिलीव इन दैट, एंड दैट्स माई स्ट्रॉन्ग मैसेज टू ऑल ऑफ यू। अगर सही में आप थोड़ा रियल कैंडिडेट हो, नहीं तो आप पुल बनाओगे एंड ब्रिज विल फॉल, राइट। अगर तुक्का से अगर जा रहे हो आप NIT IIT में तो क्या हाल होगा आपको भी पता है। एनीवे 3 ABC in AP, ये बहुत ही साधारण क्वेश्चन है बाबू, तो इसमें इवन इफ़ यू आर स्पेंडिंग 5 minutes इज वर्थ, क्योंकि आपको ये गारंटीड मार्क्स देगा। तो आई थिंक अब पेपर तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है। हाँ, अब यहाँ पे A क्रॉस B क्रॉस I क्या होगा? डोंट स्टार्ट फाइंडिंग A क्रॉस B, अगर चाहो तो फाइंड कर सकते हो। तो आपको क्या पूछ रहा है, C वेक्टर दे रखा है A क्रॉस B क्रॉस I, A क्रॉस B क्रॉस I इज A.I B वेक्टर माइनस B.I A वेक्टर। अब A.I बहुत ही आसान है, क्योंकि A.I -5 होगा, बाद बाकी जीकेगा, तो -5 B वेक्टर आया एंड B.I ये भी 1 आया, सो माइनस। अब इसको फिर अगर मैं I से क्रॉस करूँ और फिर I से क्रॉस करूँ, ठीक है, तो अब तुम फिर ये भी कर सकते हो -5B -A.I वेक्टर, क्योंकि ये हो गया गोलू भोलू बिक्की, -5B -A.I तो I वेक्टर। तो ये तो मज़ा आ गया, क्योंकि ये तो जाएगा -2 टाइम्स ही आ गया, क्योंकि ये तो -2 टाइम्स दिस क्वांटिटी एंड -5B -A इज वेरी इजी कैलकुलेट, Y वेक्टर कैलकुलेट कर लो, वहाँ से C वेक्टर आ गया, वंस यू नो C वेक्टर कैलकुलेट से डायरेक्टली ओके। इफ समवन डज A क्रॉस B सेपरेटली दैट्स ऑल्सो वन ऑफ द वे, क्योंकि यहाँ पे भी दैट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू डू, लेकिन शायद थोड़ा टाइम लगेगा, आप उससे कर सकते हो। अब चलो ये 12th वाले क्वेश्चन को भी देखते हैं, हाउ टू किल स्मार्टली। एक तो यहाँ पे दिस इज वेरी स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो x को 1/x से रिप्लेस करोगे तो 5 of 1/x प्लस 4 टाइम्स ऑफ x इक्वल्स 1/x² - 2। नाउ इज जस्ट लाइक अ लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इट्स लाइक 5a + 4b इज समथिंग एंड 5b + 4a इज समथिंग, तो डायरेक्टली यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ f of x बाई एलिमिनेटिंग f of 1/x, ठीक है। अब जैसे ही f of x आप फाइंड किए तो x² f of x को उसमें डालिए एंड फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके मेक ग्रेटर देन 0, तो वो भी काफ़ी आसान सा क्वेश्चन आ जाएगा, मीन्स देयर इज नथिंग ग्रेट इन दैट, राइट। सो यू कैन फाइंड द
पॉइंट वेयर इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग. बट अगेन इसको भी अगर आप एफ ऑफ एक्स कैलकुलेट करोगे इनफैक्ट तो इट विल टेक 2 मिनट्स. 2x² माइनस 4/9x² आएगा एंड दैट्स द रीजन दे मल्टीप्लाई विथ 9x² परहैप्स. सो ये ख़त्म ही हो जाएगा. सो योर फंक्शन इज जस्ट 5x4 minus 2x4 minus. So if you differentiate it 20x³ minus 4x, 4 is strictly increasing, this will be positive. So it will be 4x into 5x² minus 1 getting 0. तो बस अब वेवी कर्व से रूट इज 0 1/√5 माइनस 1/√5 एक्स अनंत पे अनंत ऐसा जाएगा. सो फॉर पॉजिटिव वी हैव माइनस 1/√5 to 0 एंड 1/√5 to infinity. तो ये आंसर आ गया. तो आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ खास ट्रिक यूज होगा. अब ऑफकोर्स कॉस्मेटिक ट्रिक आई कैन यूज एज अ टीचर. अब देखो अगर हमको सॉल्व करना होगा तो बिकॉज ऑफ मोर इन्फॉर्मेशन आई कैन डेफिनेटली यूज ट्रिक यहाँ पे भी. कैसे? बट अब ये आइडिया क्लिक करना आपके लिए मुश्किल है. वाई ये है तो अगर मैं डेरिवेटिव का बात करूँ वाई डैश का, क्योंकि आई जस्ट टेक वन इंटरवल. सपोज मैं एट x equal to 1 I want to try because that will eliminate most of the option. At x equal to 1 I am checking whether function is increasing or decreasing. तो 1 पे y डैश का क्या वैल्यू आएगा? इट्स एनीवे 9 टाइम्स एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स प्लस 2x इंटू एफ ऑफ एक्स. अब 1 पे वी वांट एफ डैश 1 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 1. How to calculate f of 1? That's very easy. Put x equal to 1 in this expression. So 9f1 equals -1. So f1 का वैल्यू नेगेटिव आया -1/9. ठीक है. So this will become -2/9. Now I need to calculate f dash 1. Now how to calculate f dash 1 without finding f of x? Differentiate कर दो इस फंक्शनल रिलेशन को. So 5f dash plus 4f dash 1 by x, of course is x, into by chain rule f of 1 by x का तो डिफरेंशिएट किया 1 by x का -1 by x स्क्वायर इज 2x. Now put x equals 1. So x equals 1 पे is 5f dash 1 4f dash 1 minus 4f dash 1. So f dash 1 will directly be 2. तो ये तो हो गया 2 minus 2/9. It means positive. It means dy by dx is positive at x equal to 1. So at x equal to 1 function must be increasing. x equal to 1 तो इस इंटरवल में जिसमें फंक्शन डिक्रीजिंग है ऑप्शन ये गया. x equal to 1 है ही नहीं, ये भी गया. It means 1/√5 to infinity में हो सकता है. So again there is a tug of war between 2 to 4. अब उस tug of war को भी स्मार्टली आप कवर कर सकते हो. स्मार्टली कैसे कर सकते हो? क्योंकि फिर एक ऐसा भी वैल्यू है जहाँ पे ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि x विल बी इक्वल टू 1 by x एट 2 वैल्यू एक्स स्क्वायर इज 1 x इक्वल टू प्लस माइनस. तो 1 पे चेक किया तो 2 ऑप्शन गया, -1 पे चेक करोगे ये तीसरा ऑप्शन भी चले जाएगा एंड द वैल्यू दैट यू विल बी गेटिंग इज ऑप्शन नंबर 4. तो ऐसे भी अगेन स्मार्टली यू कैन मर्डर दिस क्वेश्चन और किल दिस क्वेश्चन. एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बिकॉज ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दिस, लेकिन आप बहुत ही ज़्यादा टाइम लेते हो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. व्हाट बेसिकली यू डू, ठीक है, आपको कोचिंग में सिखाया गया जो del1 कैलकुलेट करो, del2 करो, del3 करो और delta करो. अब जो आपको ये सिखा रहे हैं डेफिनेटली इट्स करेक्ट, लेकिन ये गलत इन्फॉर्मेशन है. अब इसमें गलती क्या है? सबसे पहले दिस इज ओनली वैलिड इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस के लिए. डायरेक्ट इफ ऑल ऑफ देम इज 0 दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन. ठीक है, इनफैक्ट दैट सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. उल्टा है. क्यों नहीं है? कोई 0 अगर सब 0 हो जाए सब डेल्टा, तो आंसर यहाँ से इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है और नो सॉल्यूशन भी हो सकता है. इसीलिए बहुत जेई एडवांस में बहुत ऐसे सारे क्वेश्चन है जहाँ सब 0 हो गया लेकिन नो सॉल्यूशन आ गया. ठीक है, सो डोंट ट्रस्ट लाइक उल्टा विल बी ट्रू. इफ ऑल इज 0 इट मे गिव इन्फिनिटली मेनी और नो सॉल्यूशन. नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन इफ यू नो द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन व्हिच इज बेसिकली प्लेन. ठीक है, सो फॉर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन, अब देखो ये फर्स्ट इक्वेशन है, एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा 3D में अगर आप उससे रिलेट करोगे. सपोज प्लेन नंबर 1. सेकंड इक्वेशन भी एक प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, प्लेन नंबर 2. नाउ 2 प्लेन विल ऑलवेज इंटरसेक्ट ऑन ए लाइन. दैट्स व्हाई वी टॉक ऑफ लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन, नॉट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. क्योंकि एक लाइन पे जाएगा, क्योंकि सुनो 2 कवर्स लाइक पेजेज ऑफ ए बुक, एक लाइन पे जाएगा. अब अगर तीसरा प्लेन, अब तीसरा प्लेन क्या होगा? तीसरा प्लेन हो सकता है इस लाइन को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे कट करे, तब तो यूनिक सॉल्यूशन हो गया. या फिर तीसरा प्लेन इस लाइन के पैरेलल चले जाए, मान लो लाइन यहाँ और प्लेन यहाँ हो गया, ये पैरेलल हो गया, इस दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस, तब तो 0 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा. इन्फिनिटली सॉल्यूशन के लिए एक ही पेज है. जो तीसरा प्लेन इज ऑल्सो द पेज कवर ऑफ सम बुक, मतलब पेज ऑफ सम बुक. इट मीन्स थर्ड प्लेन P3 और एनी वन प्लेन PI इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ PJ प्लस PK. ऐसे यहाँ पे ऐसा हो सकता है थर्ड प्लेन P3 को हम P1 प्लस P2 के फैमिली से ला सकते हैं. नॉट एग्जैक्टली P1 प्लस P2 बट मे बी P1 प्लस सम लैम्डा P2 फॉर सम रीजन. ठीक है, जस्ट लाइक फैमिली ऑफ लाइन्स. क्योंकि
if I consider family of planes p1 plus lambda p2, it will definitely be an expression, linear expression in xyz. Okay, moreover any point alpha beta gamma which satisfies p1 and which satisfy p2 will satisfy this. तो ये एक प्लेन है जो कि इस पॉइंट से सेटिस्फाई हो रहा है, इस पॉइंट से, इट मीन्स इट्स अ प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. तो कॉन्सेप्ट भी आपको समझा दिए. ठीक, अब इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन है. इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब इंस्टेड ऑफ क्रेमर्स रूल एंड स्पेंडिंग उतना टाइम, तो मैं ऐसा सोचूँ कोई भी एक इक्वेशन को हम दो के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. तो एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो सम लेमडा टाइम्स p1 एंड प्लस सम म्यू टाइम्स p2 लेंगे. I hope you got this idea, because if I am forcing lambda to be 1, I will not be able to create entire plane passing through the line of intersection of p1 and p3. Now then some of you will tell, sir, but in case of line in 2D L1 and L2 is there, then family of lines was L1 plus lambda L2 equal to 0. अब देखो वहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि अगर हम कोई भी लाइन लें उसको L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिख सकते हो. ठीक है, अब क्यों लिख सकते हो? क्योंकि इवन इफ आई टेक म्यू L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स 0, सो बाई टेकिंग म्यू कॉमन, जब इक्वल टू 0 लिखते हो तब तो पॉसिबल ही है, क्योंकि बाई टेकिंग म्यू कॉमन लेमडा में म्यू इज स्टिल न्यू वेरिएबल. लेकिन इफ आई टेल फाइंड एनी लाइन L इफ इट इज L1 प्लस लेमडा L2, क्या हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं? तो इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि इट विल बी म्यू L1 प्लस लेमडा L2. सो बोथ डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड. आई होप इट्स क्लियर. ठीक है, because when you equate this expression to 0 then it's fine, because mu I can take care and effectively one variable comes in x. तब यहाँ से, और वैसे भी तुम सोच सकते हो अगर हम एक ही वेरिएबल को इंड्यूस करें तो फिर इनकन्सिस्टेंसी आ जाएगा. क्यों? क्योंकि x के कोफिशिएंट को इक्वेट करेंगे y को और z को, सो विल हैव 3 इक्वेशन, लेकिन जस्ट सिंगल अननोन. तो वो तो बता रहा है, साफ इनकन्सिस्टेंसी को दिखा रहा है. ठीक है, अब आप p3 के कोफिशिएंट्स क्या है? 3. सो नाउ यू कैन बी फास्ट. सो इट्स 3, y is -1, z is beta, and -7 will be constant. So this is some lambda times p1. Let's say 2, 3, -1, -5. Even in examination you solve like this. इससे calculation I, j, k, x, y क्यों ही लिखोगे? Mu times second 1 alpha 3 4, 1 alpha 3 and 4. ये कॉन्सेप्ट यूजुअली नहीं पढ़ाया जाता है. ठीक है, in some coaching I've seen they are doing this from my experience, but usually teachers don't do this. तो यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से आप देखो 3 equals 2 lambda plus mu, फर्स्ट कोफिशिएंट को इक्वेट करके, सेकेंड को इक्वेट करके -1 इक्वल्स 3 लेमडा प्लस म्यू अल्फा. ठीक है, एक और चाहिए, -7 इक्वल्स -5 लेमडा प्लस 4 म्यू. तो फर्स्ट और थर्ड के हेल्प से हमको लेमडा और म्यू का वैल्यू डायरेक्ट आ गया. ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ के हेल्प से लेमडा और म्यू का वैल्यू डायरेक्ट आ गया. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे 1 अल्फ़ा, ये ना, तो यहाँ से कितना आया? सॉल्व ही कर लेते हैं. 4 म्यू, सो 4 इफ आई गिव इट विल बी 8 and 12, right? And if I subtract this we'll get 13 lambda equals 19. Oh nice, so lambda is 19 by 13 by 19, 19 by 13. Okay, and the value of, similarly you can find mu. Now once you know value of lambda and mu, अब lambda you calculate here, if I am correct, 19 and we have 13, so 13 lambda is 19. Yeah, so similarly you can find mu. अब mu और lambda फाइंड जैसे ही कर लोगे तो फिर इक्वेट जेड पार्ट, तो वहाँ से अल्फा और बीटा आ गया. ठीक है, तो अल्फा का जो वैल्यू यू विल गेट विल बी -70 एंड बीटा का वैल्यू विल गेट -16 में 13. प्लीज चेक दिस कैलकुलेशन लैम्डा वाला. तो अल्फा बीटा विल गिव 17 × 16 में 13, इसलिए 13 कैंसिल हो जाएगा. आंसर इज 17 × 16 विच इज 1120. So this was again a new way of doing this. Now the power of this way is sometimes they will give even the second expression as fixed independent of alpha. ठीक है, तो इसमें ये बहुत जल्दी आ जाएगा, because you will have you know like only 2 equation to unknown will come very fast. तो सपोज इंस्टेड ऑफ अल्फा इफ इट वेयर सम 1, अब अगर आप करोगे तो बहुत ही फास्ट सॉल्यूशन आएगा इस मेथड से. नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता? नो सॉल्यूशन के लिए इस मेथड से जाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि नो सॉल्यूशन के लिए बहुत केस होगा. एक तो यू कैन नॉट राइट दिस इन लीनियर कॉम्बिनेशन. ठीक है, बिकॉज फॉर नो सॉल्यूशन ऑल द 3 प्लेन माइट फॉर्म अ प्रिज्म, और मे बी 2 intersects on a particular line and third is parallel to that line. Okay, that's why in either case no solution के लिए यहाँ से आप क्या लेते हैं? n1 क्रॉस n2 डॉट n3 मस्ट बी 0, बिकॉज ये प्लेन इज n1 क्रॉस n2 एंड थर्ड प्लेन का डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर n3. दैट्स व्हाई द नेसेसरी कंडीशन इज डेल्टा इक्वल टू 0, वो वाला जो है. ठीक है, एनीवे आई होप यू हैव enjoyed and understood this
इंटायर पेपर। अब डिफरेंशियल इक्वेशन वाला भी अगर सोच रहे हो कैसे करेंगे तो ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एक्स प्लस वाई करके आपको टी मानना होगा। जैसे ही टी मानोगे इट विल गो टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ई का पावर इंटीग्रल पी डी एक्स वाला थियरी यू नो, सो फ्रॉम देयर यू कैन सॉल्व दिस, ठीक है। अब कई बार डिफरेंशियल इक्वेशन में भी स्मार्टनेस हो सकता है, यहाँ पे वो स्मार्टनेस है या नहीं वो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू जीरो डायरेक्ट पुट करो, एट एक्स जीरो वाई इज वन, सो एट एक्स जीरो वाई इज वन, सो दिस विल बी जीरो, दिस विल बी जीरो माइनस वन। इट मीन्स स्लोप ऑफ द फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो इज नेगेटिव वन। तो जीरो पे तो फंक्शन कुछ ऐसा ही चल रहा होगा, मतलब जीरो से लगभग इफ अ फंक्शन इज नाइस, जैसे इसमें डिफरेंशिएशन होकर नेगेटिव जाके फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको पूछ सकता है कोई जेई वाला लाइक जस्ट आफ्टर जीरो मे बी वन वाई ऑफ 1/2024, नॉट टेलिंग दैट्स गारंटी, लेकिन मोस्ट चांस है ये देखो लेस देन जीरो का, क्योंकि इसके बाद फंक्शन डिक्रीज करने का कोशिश करेगा फिर इंक्रीज करने का। यहाँ से कोई एक और वैल्यू शायद दे दे तुम बाउंड्री कंडीशन, बिकॉज बाउंड्री कंडीशन आपको पता चलेगा फंक्शन का नेचर क्या है। दैट्स वाई मेनी टाइम्स दे गिव यू सम इनिशियल कंडीशन एंड यू गॉट 2 आंसर्स एंड यू आर नॉट एबल टू एलिमिनेट, so that elimination is done via graph. I hope this session was very very useful for you and I can give you guarantee, अगर आप इस सेशन का टेक अवे सही से समझ लिए, not the just the solution, the take away, this will definitely add 20 to 30 marks, which means your percentile from 95 in the previous session can go up to 99.5, ठीक है। 30 marks बहुत होता है अच्छे पेपर्स में। So wish you all the best. Now I'll stop the session of PYQs for problem solving, and still we'll be targeting for advanced premium content on this. Moreover, there will be a surprise in the upcoming videos further, so please stay connected to my channel, and it takes a lot of energy to put sessions like this and experience, okay? So please do like and subscribe and also share as much as you can, because I have limited audience as of now. Anyway, truth can be in trouble but never be defeated. तो 1 घंटा मेडिटेशन कीजिए आज से 2-3 दिन, 15 मिनट मेडिटेशन करो, हाफ एन आवर गो एंड प्ले सम